Good morning, all my dear students. As you know that our chapter name is political parties, and today our topic is national parties. Okay, so it is very interesting for us. Uh, it is Hindi meaning is Rashtriya Rajnitik Dal. Okay, now my dear students, in the democratic countries that follow a federal system of government, we usually notice two kinds of political parties. The one that the present in one or some units of federations, and the other that is present in all units of federations or for the that matter in the whole country. This is exactly the case of India. The parties that have their presence all over the country are known as national parties. Okay? Repeat it once again. The parties that have their presence all over the country are known as national parties. These parties have their units in various states which follow almost the same policies and programs that are decided at the national level. As per the protocol requirement, all the parties in our country have registered themselves which are election commission. Thus, the election commission treats all the parties equally. It grants some special facilities to large and established parties. Election Commission allots a unique and specific symbol to these parties. Only the official candidates of their parties can use the party symbol. Parties that get this special privilege and some other facilities are recognized by the election commission. That is why these parties are called recognized political parties. What? Recognized political parties. The election commission has laid down certain criteria for recognize a political party as a national or state party. What is the criteria? So listen carefully. Now, criteria for national level parties, you have to listen carefully. Must secure 6% of total votes in the Lok Sabha or 6% total votes in the assembly election of 4 states, and must win minimum 4 states in Lok Sabha. Okay? Okay, just I explain in Hindi. डेमोक्रेसी में जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, जहाँ पर 2 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पाए जाते हैं. First, parties that are present only one of the federal units and parties that are present in several all of unit of federation. It means संघीय इकाइयों में से केवल एक इकाई में अस्तित्व रखने वाला दल और
दूसरा अनेक या संघ की सभी इकाइयों से अस्तित्व रखने वाला पार्टी। ओके, एक तरह से देखा जाए तो सभी जितनी भी यूनिट्स हैं नेशनल लेवल की, जितने भी यूनिट्स पर निर्धारित होने वाले जो पॉलिसीज़ और जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को वो लोग क्या करते हैं, मानते हैं। ओके, और जितने भी पार्टीज़ हैं उन्हें इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। जितने भी यूनिट्स के लोग हैं सभी लोग जो है बराबर होते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कोई बड़ा बट कुछ ऐसी कोई बड़ा और कोई छोटा है, बट ऐसी कुछ जैसे कुछ बहुत बड़े जो है हमारे पार्टीज़ हैं जिन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाता है। इन पार्टीज़ को जो है अलग से क्या किया जाता है, इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, और जिसका ये लोग यूज पार्टी को पार्टी के अधीन जितने भी उम्मीदवार होते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, वो सभी कर सकते हैं। ये प्रिविलेजेस इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स को प्राप्त करने वाले जो पार्टीज़ हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है, एफिलिएटेड पार्टीज़ या फिर मान्यता प्राप्त दल कहलाते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ बिल्कुल स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। ठीक है, कि कोई दल, कोई भी पार्टी कितने प्रतिशत वोट तथा सीट जीतकर अपने को ये प्रूव कर सकता है कि वी आर एलिजिबल फॉर दैट, मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। ऐसी कोई भी पार्टी जो राज्य लेजिस्लेचर विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करती है तथा कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ओके, इट मीन्स मस्ट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा एंड 6% टोटल वोट्स इन असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट। ओके, यदि कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन में पड़े कुल वोटों का या फिर 4 राज्यों के विधान सभा की जो चुनाव में पड़े कुल वोटों के 6% प्राप्त कर लेती है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत हासिल करती है, तो उसे जो है नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। ठीक, ये जो डिवीज़न हुआ था, ये वर्गीकरण के अकॉर्डिंग 2006 में हमारे देश में 6 पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ की मान्यता मिली थी। अब हम जो लोग हैं हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से थी। And according to the classification, there were 7 recognized national parties in country in 2018. ये 2006 में, लेकिन 2018 में कितनी है, 7। ठीक है, let us learn something about each of this party। चलो हम लोग एक करके इसको पढ़ते हैं कि ये पार्टीज क्या होती हैं। इससे पहले मैं कुछ और भी चीज़ें बता दूँ आपको कि ओके नाउ let's start। ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस। Launched 1st January 1998 under the leadership of Mahatma Banerjee, recognized as the national party in 2016. The party symbol is flower and grass. Committed to the secular and federalism, has been in power in the West Bengal since 2011. Also has a
presence of in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura is a general election held in 2019. It got 4.07% votes and won 22 seats, making it the fourth largest party in the Lok Sabha. बेटा जो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस जो है, ठीक है, उसको सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पार्टी बनी थी ये 1 जनवरी 1998 में बनी थी। इसके जो हेड थे जिन्होंने बनाया था, ठीक है, जो लीडरशिप जिनके लीडरशिप में ये बना था उनका नाम था ममता बनर्जी, ठीक है। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इसे जो है क्या किया था कि नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया था, कि मान्यता दे दी थी, रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी को के रूप में इसको मिली थी। पार्टी का जो चिन्ह है वो फूल और घास है, ठीक। ये जो है ये दिखाता है कि हम क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और समाजवाद को सहयोग करती है। यह जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में 2011 से ही यहाँ पर शासन कर रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी जो है ये उपस्थित है, इसकी प्रेजेंस है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इसने 3.84 तथा 34 सीटें जीती थी और 2009 में इट गॉट द 0.7% वोट्स एंड ओन 22 सीट्स, मेकिंग इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द Lok Sabha. Okay, now next is Bahujan Samaj Party. I think you all are known about very well for the Bahujan Samaj Party. Formed in 1984 under the leadership of Kansi Ram, seeks to present and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, advises OBC and recognizes minorities, draw inspirations of the ideas and teaching the Shahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar, Ramaswamy, Nikkar and Baba Saheb Ambedkar stand for the cause for securing the interest and welfare of the Dalits and opposite peoples. It has its means based in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, Punjab. Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties and different time in the Lok Sabha election held in 2019. It polled about the 3.63% votes and secured 10 seats in the Lok Sabha. इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था वो समय था 1984 का टाइम था। काशीराम के लीडरशिप में इस पार्टी का गठन हुआ था। ये जो पार्टी बनी थी ये शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इसके अलावा जो है रीजनल जो माइनॉरिटी के पीपल्स हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर जो है पॉलिटिकल पावर को पाने की कोशिश की तथा उनका प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं, ठीक है। पार्टी महात्मा फुले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इसके अलावा जो है पेरियार स्वामी नायकर की शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित है। दलितों और गरीब लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर यह पार्टी सबसे अधिक सक्रिय है, ठीक है। इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है, बट यह जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में भी काफ़ी जो है पावरफुल है। डिफरेंट पार्टीज से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और समर्थन लेकर इसने यूपी में कई बार सरकार भी बनाई है। इस पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 4% सीटें मिले, परंतु यह कोई सीट हासिल नहीं कर सकी।
in the Lok Sabha election held in 2019, it polled about 3.63% votes and secured. बट ये 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 3.63% वोट्स को पाकर इसने 10 सीट को लोकसभा में अपने लिए क्या कर लिया था, सिक्योर कर लिया था। ठीक है, 2014 का अभी मैंने बताया, फिर 2019 दोनों का मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी आपको बताना नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, बट इतना मैं बता दूं कि फाउंडेड इन 1980 बाय द रिवाइविंग द एस्टवाइल भारतीय जनता संघ formed by the Shyam Prasad Mukherjee in 1951 want to build a strong and modern India by the drawing drawing inspirations from the Indian Asian culture and value and Deen Dayal Upadhyay idea and international humanism and Antyodaya culture, nationalism or is an important element to concept of Indian nationhood and politics. Want full territorial and political integrations of Jammu and Kashmir with India and uniform civil code. Want full territorial and political integrations of Jammu and Kashmir with India and uniform civil code for all political living in the country, irrespective of religions and ban or irreligious conversations. Its support base increased substantially in 1990. Now listen dear, इस पार्टी का जो गठन हुआ था 1918 में हुआ था। भारत की इंडिया की प्राचीन जो संस्कृति और उसके मूल्यों को प्रेरित होकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लक्ष्य से भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रमुख या हिंदुत्व का एक तरह से समझ लो कि बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है। यह जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय यानी कि रीजनल या फिर पॉलिटिकल स्तर पर विशेष दर्जा देने के विरुद्ध है। अभी आपको इसका पता चल ही गया, क्योंकि जो किस तरह से उसको हटाया गया है, जो वहाँ पे आर्टिकल्स था, और उस आर्टिकल वो कौन सा आर्टिकल्स था ये आप लोग खुद मुझे बताएंगे। ओके, ये चाहते हैं कि देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान जो है दर्जा मिले, सभी लोग और जो धर्मांतरण हो रहा है, ठीक, जो धर्म परिवर्तन लोग करते हैं, अपने रिलीजियस को चेंज करते हैं, उसके ऊपर रोक लगे। और 1990 के दशक के डिकेड से इसके इसके सपोर्ट का आधार काफ़ी बड़ा है। पहले यह पार्टी देश के उत्तर यानी कि नॉर्थ और वेस्ट तथा और भी सारी इलाकों में ही सिमटी हुई थी, बट इस समय में यह जो है सदर्न, फिर उसके बाद करें बात ईस्टर्न साइड की और नॉर्थ ईस्टर्न साइड की, तो ये बहुत मतलब दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। नेशनल लेवल पर इस पार्टी का जो है गठबंधन में विभिन्न जो है मतलब जो पार्टनरशिप में डिफरेंट स्टेट और बहुत सारे जो रीजनल जो पार्टीज़ होती हैं वो सम्मिलित थे। और इसके बाद जो है 2019 में लोकसभा इलेक्शन
currently lead the ruling NDA government in the government at the center. Okay. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ओके बेटा।